Hey everyone, this is Lakshya and today I'll be telling you about my counseling experiences, that how it all went, how it started from JEE Mains, then BITS Pilani, BITS Goa, then it finally ended up at JEE Advanced. I'll be telling you about my preferences, how I filled the order, whether I considered the branch, whether I considered the college. I'll be telling you everything about that. And the most important thing, did I consulted any counselor or did I pay any fees regarding that? So I'll be covering all these stuffs in this video, so stay till the end of this video and do not forget to like, share and subscribe my channel. Also, if you want to see the college reviews of IITs, so I've made a college reviews of various IITs, so you can go check them out in the description box. So without wasting any further time, let's get right into the video. So it all started with JEE Mains. As soon as the results were declared, I got around 99 percentile approx. So I was quite sure that I'll be getting into a decent college with a decent branch, and at that time I checked out the cutoff list of IIT Delhi CSE. So I was sure that I'll be getting that in the last round. So I was quite relieved that I'm getting something, and even if I do not clear JEE Advanced, then I am having something with me. Neglecting the fact that I didn't want CSE to be my branch. I seriously wasn't sure about going further with CSE because I didn't like coding and I didn't like these stuff of computer and all, because till 10th whenever we used to have our computer classes, I seriously didn't develop a very good interest in those things. So I was of the fact that I'll not take CSE at all. And after studying electrical in electrostatics, electrical magnetic field in class 12th, I also developed an opinion that I'm not going to take electrical ECE, EEE in IITs or maybe any colleges. So वो सब चीज़ें I've neglected कि मुझे नहीं लेना. But my father was of the opinion कि देखो, even if you do not want to take these things, you want physics or maybe mechanical engineering, तो अगर if you get a very good rank or if you are getting CSE, so I'll tell you to take CSE. I'll prefer to take CSE only because you can easily downgrade a branch. आप अपग्रेड करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट इन IITs एंड IITs. किसी भी कॉलेज में और किसी कॉलेज में अपग्रेडेशन इज़ नॉट पॉसिबल. सो माई फादर सजेस्टेड मी कि अगर इफ़ यू डू नॉट लाइक CSE, अगर आपको मिल जाती है किसी कॉलेज में, देन यू विल हैव टू टेक दैट ओनली. डाउनग्रेड कर लेना, इट्स ईजियर टू डाउनग्रेड योर सेल्फ. तो आई अग्रीड टू हिम. आई सेड कि ठीक है, आई विल ट्राई फॉर 1 ईयर. अगर मुझे नहीं अच्छा लगता तो आई डाउनग्रेड, अगर मेरी रैंक अच्छी आ भी जाती है. बट दैट रियली डिड नॉट हैपन. इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी दैट आई एम टेलिंग यू कि CSE मिल जाती मुझे इन JEE Advanced. सो जब JEE Mains का ये हो गया तो आई वाज श्योर कि ये मिल रहा है तो मैं ले लेती अगर मेरी JEE Advanced में अच्छी रैंक नहीं आती तो. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि BITS का एग्ज़ाम आई गेव. तो BITS का एग्ज़ाम देने के बाद ना आई वॉज गेटिंग BITS गोवा मैकेनिकल या ECE कुछ मिल रही थी, तो वो मुझे मिल जाता. BITS पिलानी में आई वॉज गेटिंग आई थिंक सिविल मिल रही थी मुझे. तो माई फादर टोल्ड मी कि BITS गोवा इज़ गुड. माई मदर ऑल्सो टोल्ड मी कि ओके, BITS गोवा इज़ रियली कूल, तो वहाँ चलते हैं. तो BITS गोवा का हमारा डिसाइड हो गया था कि JEE Advanced में नहीं हुआ तो BITS गोवा जाएंगे. तो समझ रहे हो ना? BITS गोवा इज़ फाइनल. हम IIT दिल्ली CSE की उसको हटा देते हैं, लाइक उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं कि उसमें जाना भी है. हम अब BITS को पकड़ेंगे. BITS इज़ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट अदर देन IIT दिल्ली CSE. तो BITS उनको ज़्यादा बेटर लगा, तो उन्होंने सोचा कि BITS गोवा में करा देते हैं. फिर मेरी BITS की काउंसलिंग वॉज गोइंग ऑन. BITS की काउंसलिंग पहले शुरू हो जाती है जोसा से और जैक से, मतलब 1-2 हफ्ते पहले इट बिगिनस. तो उस टाइम तक उसके काफ़ी ज़्यादा राउंड्स शुरू हो जाते हैं. तो जब BITS की काउंसलिंग चल रही थी, इतने में मेरा JEE Advanced का पेपर हो गया. तो JEE Advanced का पेपर हुआ तो मेरे को लग रहा था कि नहीं, IIT तो मिल जाएगा कोई. जब मैंने अपना कट ऑफ वगैरह चेक किया था, तो फिर मैंने वो BITS की जो काउंसलिंग थी ना, उससे आई विड्रॉ. तो मैंने विड्रॉ कर लिया उससे, और मैंने सोचा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है BITS में कंटिन्यू करने का, बिकॉज आई एम गेटिंग IIT. और मेरा जो मेन मोटो था कि मेरे को IIT में जाना है, वो पूरा हो रहा है, इवन इफ़ आई एम नॉट गेटिंग अ गुड ब्रांच. और मेरे अंदर से तो यही थी ना दैट आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू CSE. मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था. तो कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? तो मैं खुश थी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई एम गेटिंग इन टू IIT। तो बिट्स को छोड़ देते हैं, तो बिट्स में एक्चुअली पैसे भी भरने पड़ते हैं एंड दैट टू इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट दैट मनी बैक। तो कभी कभी दीज थिंग्स आर नॉट रिफंडेबल, तो मैंने वो सब छोड़ दिया था। 30,000 समथिंग था तो मैंने नहीं दिया था। फिर उसके बाद जोसा की काउंसलिंग इज़ फॉर गेटिंग इनटू IITs, NITs, GFTIs एंड IIITs। और एक जैक होती है, जैक काउंसलिंग इज़ फॉर द कॉलेजेस इन दिल्ली, लाइक ये आपका DTU, IGT, DUW और IIIT दिल्ली, और भी NSUT, NSIT, ये सब कॉलेजेस के लिए जैक की काउंसलिंग होती है। तो अगर आप दिल्ली से हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एज मिलती है ओवर अदर्स। आपकी ज़्यादा रैंक में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल जाता है दिल्ली का। DTU वगैरह बहुत अच्छे से आपको मिल जाता है, तो उसमें आप यू कैन पार्टिसिपेट। तो मैंने जैक में पार्टिसिपेट, मैंने फॉर्म तो भरा था, मतलब मैंने उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ भरा था, बट मैं उसके अंदर ज़्यादा सीरियस नहीं थी। मैंने प्रेफरेंसेस भी भर दी थी। और जैक की काउंसलिंग में आई डिडंट फिल IGT, DUW। मम्मा ने बोला था कि कोएड कॉलेज में ही भेजेंगे, इस कॉलेज को नहीं भरना है, तो फिर हमने नहीं भरा था। मैंने DTU सबसे टॉप पे रखा था, DTU CSE। फिर उसके बाद ऑर्डर वाइज थोड़ा नीचे नीचे गए, फिर उसके बाद NSIT, CSE, ऐसे मैंने कुछ भरा था। तो सबसे पहले तो मैंने, इवन इफ़ आई डोंट लाइक CSE, मैंने भर दिया था CSE ही, बिकॉज ऑफ दैट डाउनग्रेड। तो वो सब मैंने भर दिया था। तो आप भी हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहले जो भी आपको, देखो आई सजेस्ट कि ये कर सकते हो डाउनग्रेड। तो अगर CSE में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी यू हैव टू फिल CSE। तो सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस की CSE भर देना। और एक ये भी फैक्टर कंसिडर करना कि आप कहाँ पे रहते हो। लाइक आई एम अ पर्सन फ्रॉम नियर दिल्ली ओनली, हरियाणा से हूँ मैं। तो मेरे पास दिल्ली है, मैं कहीं पे भी लाइक आई कैन विजिट टू दीज कॉलेजेस। जो साउथ के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है एडजस्टिंग इन टू द नॉर्थ इंडियन इन्वायरमेंट। तो आपको अपना वो भी चेक करना है कि आप एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं। सो दैट आई चेकड। तो मैंने तो दिल्ली का भर दिया था। फिर उसके बाद जब जोसा की काउंसलिंग चल रही थी, अब जैक में भी 3rd या 4th राउंड के बाद मैंने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि मुझे IIT मिल गई थी जोसा के काउंसलिंग में। मतलब मॉक राउंड्स हो रहे थे, तो मॉक राउंड्स में मुझे मिल गया था। मुझे मॉक राउंड्स में गांधीनगर की मैकेनिकल मिली थी, IIT गांधीनगर की मैकेनिकल। तो 2 मॉक राउंड्स में लगातार आई थिंक मुझे ये मिला था। फिर उसके बाद मतलब प्रेफरेंसेस मैंने ऐसे भरे थे, जैसे सबसे पहले तो आई फील्ड IIT बॉम्बे की CSE, फिर उसके बाद IIT दिल्ली की CSE। मुझे तो दिल्ली जाना था, माय ड्रीम कॉलेज वाज IIT दिल्ली। तो मैंने ये सब भर दिया था इन माय प्रेफरेंस ऑर्डर। फिर उसके बाद ECE, EEE ये सब भरा, फिर मैकेनिकल भरा। फिर किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत कम कॉलेज में होती है, जो मेरे को अभी मिली हुई है IIT गुवाहाटी में, बहुत ही ज़्यादा कम कॉलेजेस में होती है। तो IIT दिल्ली में थी तो वो मैंने भर दिया था, बिकॉज फिजिक्स इज़ माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो वो सब आई फील्ड। और ऐसे ऐसे मैंने प्रेफरेंस भरी थी। एक अलग वीडियो आई मेक रिगार्डिंग द प्रेफरेंसेस कि कैसे कैसे यू हैव टू फिल योर प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज। तो ये सब आई टेल यू इन अनदर वीडियो। अभी तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फ्लोट, स्लाइड, विड्रॉ, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो वो सब आई विल टेल। तो जब जोसा की काउंसलिंग शुरू हुई तो मैंने सारी प्रेफरेंसेस भरी थी। तो मॉक में व्हाट हैपेंस इज़ कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो। यू आर जस्ट गेटिंग अ रफ आइडिया कि आपको इतनी रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा इन फर्दर राउंड्स। वो मॉक होता है। तो मॉक के बाद यू विल चेंज योर प्रेफरेंसेस, और जब मॉक ख़त्म हो जाता है और आपने प्रेफरेंसेस ऑर्डर चेंज कर दिया, उसके बाद जब असली 7 राउंड शुरू होते हैं तो उन 7 राउंड में आप अपनी प्रेफरेंसेस को नहीं चेंज कर सकते हो। तो आप सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस 2 बार ही चेंज कर सकते हो। 2 मॉक हैं, पहली बार आपने प्रेफरेंस भरी, वो रिजल्ट आ गया मॉक का, फिर उसके बाद आपने फिर से अपनी प्रेफरेंसेस भरी, रिजल्ट आ गया मॉक का, फिर उसके बाद यू कांट 3 बार यू कैन फिल योर प्रेफरेंसेस। तो उसके बाद फिर जब लास्ट वाला मॉक का रिजल्ट आया तो आप फिर से अपनी प्रेफरेंसेस भरोगे, और वो प्रेफरेंसेस आपकी फाइनल प्रेफरेंस होनी चाहिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पता लगी थी। और अभी तो सब बच्चे लाइक मेरे पापा भी जब ऑफिस में जाते थे तो एवरीवन वाज लाइक कि अच्छा, मतलब पापा ने सबको बता दिया था ना दैट शी इज़ गोइंग टू गेट इनटू IIT। तो सब लोग बोल रहे थे कि अपनी जो प्रेफरेंस का ऑर्डर है वो अच्छे से भरना, क्योंकि आपकी कम रैंक में भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑर्डर दैट यू आर गोइंग टू फिल। तो वो बोल रहे थे, दे सजेस्टेड कि काउंसलर्स ले लो, इतने का काउंसलर्स आएंगे, ये ले लो, वो ले लो, 2-3 काउंसलर्स हायर कर लो, वो आपको पूरा
रेफरेंस ऑर्डर बना के देंगे जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो वो सब चीज़ें माय फादर टोल्ड टू माय मम्मा कि ठीक है, एक काउंसलर वी कैन हायर। तो और दे वर रेडी टू पे इवन 10K फॉर दैट। मतलब वो इतना ज़्यादा मान गए थे, सब लोगों ने इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था हमारा कि ये दे दो वो दे दो, मतलब कितने भी पैसे उड़ाने के लिए तैयार थे। बस ये था कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। अभी इतने पैसे लग रहे हैं बट इन रिटर्न बहुत कुछ मिलेगा अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो बिल्कुल लगे हुए थे कि इसको भी ले लो उसको भी ले लो। तो आई वुड सजेस्ट टू नॉट टेक ऑल दिस थिंग्स। मेरी मम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, हम खुद से ही प्रेफरेंस फिल करेंगे। अपने कज़न्स वगैरह से आई कंसल्टेड, और भी बहुत सारे थोड़े फ्रेंड्स वगैरह से आई कंसल्टेड, बात की थी। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए। मेरे पापा चाह रहे थे कि पैसे दे दें लेकिन मैंने नहीं दिए। मम्मा भी नहीं मानी पैसे देने के लिए क्योंकि मम्मा न्यू कि ये सब चीज़ें इतनी, मतलब वो प्रेफरेंस ही तो बना के दे देंगे, सबको एक ही प्रेफरेंस बांट रहे होंगे वो, तो फालतू में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि कैसे कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर भरना है, और आप अपने हिसाब से ट्राई करो ना यार। इफ़ यू आर लाइक विलिंग टू गेट इनटू अ कॉलेज और आपको अगर अच्छी ब्रांच चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर कॉलेज। दैट्स लाइक फॉर श्योर। ऐसा होता है ना कि कौन सी ब्रांच ले, कौन सा कॉलेज ले, अच्छी ब्रांच मिल रही है तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही। तो दैट्स ऑल अप टू यू यार। मेरा ऐसा था कि मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए। आई लाइक वॉजेंट रियली पर्टिकुलर अबाउट माई ब्रांच तो कोई भी चल जाती है। और अभी भी आई एम टेलिंग यू कि ब्रांच डजंट मैटर यार, बिल्कुल मैटर नहीं करती। वो सब मैं चलो आपको एक अच्छी वीडियो में, अलग वीडियो में बताऊंगी कि ये सब चीज़ें कैसे कंसिडर करते हैं, ये सब आई विल टेल यू इन डिटेल। तो अभी मूविंग ऑन टू माई एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद जब हमने सारा कुछ भर दिया तो इन द फर्स्ट राउंड आई गॉट IIT BHU मैकेनिकल या केमिकल, आई डोंट रिमेम्बर, केमिकल मिली थी। तो IIT BHU में आई गॉट केमिकल। फिर उसके बाद भरते 6th राउंड तक मेरी IIT BHU केमिकल ही रही, ठीक है। फिर उसके बाद ना मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए थे। एंड वन मोर थिंग, ये सब चीज़ें होती है ना तो उस टाइम पे यू हैव टू बी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं IITs के, समझ रहे हो ना? तो वो सब ज्वाइन कर लेना फेसबुक पे। ये मैं बता रही हूँ, मेरे को ऐसे ही मैं फेसबुक देख रही थी, अचानक से मुझे दिख गया वो ग्रुप तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे पता नहीं था बट दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ जाते हो, अपने फ्रेंड्स बन जाते हैं आपके नए। तो इन 6 राउंड में आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन IIT BHU, और वो फ्रेंड्स अभी तक मेरे से बात करते हैं। बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स आई मेड इन दैट कॉलेज। और केमिकल में मैं ही एक, आई थिंक मैं और एक और बच्ची थी जो व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले आए थे। तो वी वर कलेक्टिंग पीपल कि आओ यू आर फ्रॉम केमिकल, देन कम एंड टॉक टू अस, वी आर ऑल्सो फ्रॉम IIT BHU केमिकल। तो हम लोगों ने और ग्रुप्स को थोड़ा एक्सटेंड किया और केमिकल का अलग ग्रुप बन गया, फ्रेशर्स का अलग ग्रुप बन गया, तो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बन गई हमारी, ठीक है। अब 6th राउंड तक आई वॉज गेटिंग IIT BHU केमिकल, तो इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस फॉर मी कि ठीक है यार 7th राउंड में भी IIT BHU केमिकल ही आएगा। तो 7th राउंड में जब IIT गुवाहाटी इंजीनियरिंग फिजिक्स आया, No! God, please, no! 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 मतलब मुझे ऐसा था कि देखो 3rd राउंड तक तो ऐसा था कि डेफिनेटली IIT गुवाहाटी इज़ बेटर देन IIT BHU, नो ऑफेंस बट इट्स काइंड ऑफ बेटर। तो मेरे को ऐसा था कि BHU के बाद देयर आर चांसेस कि मुझे IIT गुवाहाटी मिल जाए, बट पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लाइक चांसेस हैं। मिल ही नहीं रहा था 6th राउंड तक। तो आई मेड माई माइंड कि नहीं यार IIT BHU ज़्यादा बेटर है। मैंने सारे नेट पे देख कर कि नहीं IIT BHU इज़ बेटर, IIT गुवाहाटी इज़ बेटर, कौन सा IIT बेटर है। तो मैंने अपना मन बना लिया था कि नहीं यार IIT BHU इज़ बेटर देन IIT गुवाहाटी। मतलब अपने मन को कन्विंस कर लिया था मैंने बहुत ज़्यादा, गूगल करके, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, खुद मैंने उस टाइम पर आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ रिगार्डिंग दैट, और मैं कन्विंस हो चुकी थी कि IIT BHU इज़ मच बेटर देन IIT गुवाहाटी। एंड सबसे बड़ा फैक्ट है कि IIT गुवाहाटी बहुत दूर है मेरे घर से, तो मेरे को नहीं जमेगा। IIT BHU पास में है एंड आई विजिटेड IIT BHU ऑल्सो, तो पहले मैं जा चुकी हूँ एक बार, तो वो ही बेटर है मेरे लिए। तो मैंने अपना पूरा मन बना लिया था। अब 7th राउंड में व्हाट हैपेंड हुआ, मेरे पापा ने मुझे बोला था कि IIT BHU अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो जस्ट फ्रीज इट। फ्रीज का मतलब होता है कि आप आगे काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना चाह रहे हो, आपको जो मिला है आप उसमें खुश हो। तो
आई वॉज लाइक नहीं पापा क्या पता IIT दिल्ली में कुछ मिल जाए, ऐसे थी मैं, मतलब कि कुछ मिल जाए IIT दिल्ली में, इवन इफ़ आई डिडंट फिल टेक्सटाइल, ये सब मैंने नहीं भरा था उस टाइम पे। अगर टेक्सटाइल भरा होता तो मिल जाता मुझे, बट आई डिडंट वांट टू टेक इनटू टेक्सटाइल, इसके अंदर मेरे को कोर्स स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने वो भरा नहीं था। तो आई वाज लाइक कि IIT दिल्ली में क्या पता केमिकल मिल जाए, कुछ भी, मतलब आई वाज डूइंग एनी रैंडम स्टफ़ कि कानपुर में कुछ मिल जाए, ऐसे मैंने वो फ्रीज़ नहीं किया। फिर जब फ्रीज़ नहीं किया तो 7th राउंड में आई वाज श्योर कि BHU केमिकल मिल रहा है, लेकिन नहीं मिला यार। मेरा IIT गुवाहाटी इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, जो कि मैं 3rd राउंड में सोच रही थी कि काश मुझे ही मिल जाए। अब मैंने तो अपना मन पूरा बना लिया कि BHU इज़ बेटर देन IIT गुवाहाटी। तो फिर उसके बाद आई वाज टेकन अबैक कि ये क्या हो गया, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स एडमिट थे हमारे घर के पास, तो वो सारे रिलेटिव्स हमारे घर पे ही आए थे। तो उस टाइम पे अचानक से इट शिफ्टेड। अब मैं बिल्कुल डिप्रेशन में कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन IIT BHU, और अचानक से इट गॉट शिफ्टेड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। और घर में भी ऐसा माहौल था कि लाइक सेलिब्रेशन का माहौल नहीं था ना, इट वॉज काइंड ऑफ मॉर्निंग टाइप ऑफ सिचुएशन फॉर अस। तो मम्मा तो खुश थी, पापा भी खुश थे कि गुवाहाटी मिल गया। माई रिलेटिव्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। कैंपस देखना शुरू कर दिया था उन्होंने, सारे कैंपस। अब मैं कि यार ये क्या हो गया। फिर उसके बाद 1-2 दिन तक आई वाज लाइक कि गलत हो गया, मैंने फ्रीज़ नहीं किया, आई वाज वेरी अनहैप्पी। फिर उसके बाद मैंने फिर से गूगल किया कि विच IIT इज़ बेटर। फिर उसके बाद आई मेड माई माइंड कि नहीं, IIT गुवाहाटी इज़ डेफिनेटली बेटर देन IIT BHU। देखो जो मिल जाए ना वो अच्छा होता है। तो ये एक सीख लो इस बात से कि जो भी आपको मिलता है ना उससे आपको खुश रहना चाहिए, और उसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी बातें पता कर लो, ताकि यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी सेटिस्फाइड दैट यू हैव गॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज। चाहे वो IIT नहीं है, चाहे वो NIT नहीं है, मतलब कुछ भी कॉलेज हो, जस्ट मेक श्योर कि वो आपका पसंदीदा कॉलेज होना चाहिए। चाहे भले ही शुरू में पसंदीदा ना हो, लेकिन बाद में इट शुड बी योर फेवरेट कॉलेज। शुरू के 1-2 हफ्ते तक जब कॉलेज के अंदर भी गई थी, आई यूज्ड टू रिग्रेट दैट आई कुडंट गेट इनटू IIT दिल्ली। क्या काश मैं टेक्सटाइल ले लेती, अपग्रेड करा लेती। आई गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ दोज थॉट्स इन माई माइंड, बट इन द एंड अब आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम नॉट इन टू IIT दिल्ली। आई एम वेरी हैप्पी आई एम इन IIT गुवाहाटी। अब मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता दैट आई कुडंट क्रैक टू सच एन एक्सटेंड दैट आई कैन गेट इन टू IIT दिल्ली। ठीक है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर कमिंग इन टू IIT गुवाहाटी, क्योंकि दिल्ली में तो पास में ही था। मतलब मेरे घर से अराउंड 20-30 किलोमीटर्स ही है, तो बहुत ही पास में है। तो यू नो लाइफ के लेसन्स नहीं मिल पाते आपको। बात तब होती है जब आप अपने पेरेंट्स से दूर जाके रहो। यू ट्रैवल अलोन, आपको सब कुछ करना आ जाता है अकेले। दिल्ली में होती तो कि कभी हर हफ्ते पापा मुझे लेने आ जाते, हर हफ्ते मैं मिलने आ जाती। और अब गुवाहाटी में वेंट तो पूरे 1.5 महीने में, जब उन्होंने हमें भेजा था ज़बरदस्ती तभी हम वापस आए थे, नहीं तो देयर वाज़न्ट एनी चांसेस कि हम वापस भी आ रहे थे। तो मतलब मैंने एक सीख ली कि ठीक है, जो मिले उसमें खुश रहो। और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीनियर से भी इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। एंड द पीपल हु आर कमिंग इनटू IIT गुवाहाटी, आपके लिए भी फेसबुक पे वी आर गोइंग टू मेक ग्रुप्स सून, बहुत जल्दी बन जाएंगे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आ जाओगे बहुत जल्द। तो डू जॉइन दोज ग्रुप्स। अगर आपका IIT गुवाहाटी में हो रहा है तो यू विल गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विद योर सीनियर्स। उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि कौन सा IIT बेटर है, क्योंकि उस टाइम पे तो आपके जो चॉइसेस हैं वो मतलब पूरा श्योर नहीं होता। तो आपके सीनियर्स आपको बता सकते हैं। जैसे मैं गुवाहाटी के ग्रुप में थी और BHU के ग्रुप में थी। BHU के ग्रुप में मैंने उनसे पूछा कि विच इज़ बेटर, IIT गुवाहाटी इंजीनियरिंग फिजिक्स और IIT BHU केमिकल। तो एवरीवन वाज लाइक, सब तो अपना अपना कॉलेज बता रहे थे, BHU बेटर है, गुवाहाटी बेटर है। फिर गुवाहाटी के ग्रुप से उन्होंने मुझे निकाल दिया था, क्योंकि मैंने अपने व्हाट्सएप पे IIT BHU केमिकल लिख रखा था स्टेटस में। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर उसके बाद वापस मुझे लेना ही पड़ा उनको। तो उन्होंने ले लिया वापस। फिर जब मेरा आखिरी राउंड में आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग फिजिक्स इन IIT गुवाहाटी। तो ये सब चीज़ें थी दैट आई कंसिडर्ड। मैंने काउंसलर्स बिल्कुल भी हायर नहीं किए थे, आपको भी नहीं करने। अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर को अच्छे से करना है, और यू हैव टू मेक श्योर कि वही चीज़ें भरनी है जो आप, अगर मिल जाए आपको गलती से, यू आर वेरी हैप्पी विद इट। जैसे मैंने IIT खड़गपुर नहीं भरा था, मतलब मैंने IIT खड़गपुर की सिर्फ CSE भरी थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं भरा था, बिकॉज IIT खड़गपुर में बहुत दूर है यार मेरे घर से। और मैंने देखा भी था कि प्लेन से जाएंगे, फिर उसके बाद यू हैव टू ट्रैवल इन बस, कार, सब में ट्रैवल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रीच IIT खड़गपुर। तो दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, आई थॉट।
तो आई कुडंट मैनेज इट, तो मैंने मना कर दिया था। मेरे पापा तो कह रहे थे यार खड़गपुर इतना अच्छा IIT, वो उसका चांस छोड़ रहे हो आप। तो मैंने बोला नहीं पापा, आई कुडंट मैनेज गोइंग टू IIT खड़गपुर ऑल बाय माई सेल्फ, तो मैं नहीं जाना चाह रही वहाँ पे। और वहाँ का इन्वायरमेंट भी लाइक बंगाल में फ़िश वगैरह होती है और मतलब थोड़ा वैसा, तो मैंने सोचा कि नहीं, आई विल नॉट गो देयर। और गुवाहाटी में भी जब मैंने सबको बताया कि आई एम गोइंग टू गुवाहाटी, तो एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग द डिसीजन। दे आर सेइंग कि इतनी दूर भेज रहे हो बच्ची को, क्यों भेज रहे हो ऐसे, मतलब एक ही तो है, लाइक आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो इतनी दूर क्यों भेज रहे हो, बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया गुवाहाटी। और एक सर ने तो ऐसे मजाक मजाक में कहता था आतंकवादियों के उसमें जा रहे हो आप। तो ऐसे लोग आपको कहेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज यू आर चूजिंग। ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे लाइक उसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं होती उस जगह की। तो डू नॉट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। IIT गुवाहाटी में से कोई आतंकवादी वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल अलग जगह पे एंड इट्स क्वाइट अप्रोचेबल टू। यू जस्ट हैव टू लाइक, जब हम फ्लाइट से गए थे तो फ्लाइट से गए और आधे घंटे का रन है, लाइक फ्रॉम द एयरपोर्ट टू IIT गुवाहाटी आधे से 45 मिनट्स का रन है। तो इट्स वेरी ईजी टू रीच देयर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दिल्ली से जाओगे बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, आपके पेरेंट्स के लिए दूर है। इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत पास में पड़ता है इफ़ यू आर विलिंग टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस, और अगर आपको वो प्लेस अच्छी लगती है तो। So that was about it, my experience of how the counseling sessions went, how I got into IIT Guwahati Engineering Physics finally after a lot of struggle and a lot of changes in my schedule. तो इस टाइम के बीच में आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो चीज़ें जो मैंने की थी ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक आई प्लेड गिटार, मैंने यूट्यूब चैनल खोला अपना। IIT एडवांस के पेपर के जस्ट 3-4 दिन बाद आई ओपनड अप माई चैनल। तो ये सब चीज़ें आई डिड। सो यू कैन ऑल्सो डू दोज थिंग्स। और ये क्या क्या चीज़ें यू हैव टू डू बिफोर गोइंग टू कॉलेज, आई विल बी सून ब्रिंगिंग अ वीडियो ऑन दैट, सो स्टे ट्यून्ड। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कोई भी कॉलेज रिव्यूज़ चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आई हैव मेड अ लॉट ऑफ कॉलेज रिव्यूज़ ऑन वेरियस IITs, तो वो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि किस कॉलेज की प्लेसमेंट कितनी है, रेशो कितना है, खाना कैसा मिलता है, रूम्स कैसे हैं, हॉस्टल्स कैसा है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दोज वीडियोज़। सो डू चेक देम आउट। और ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग सेशंस। काफ़ी अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको अगर आप अच्छे से प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करोगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और बाय बाय।